Hi guys and welcome to the second video of Mathemagic. Here we will be continuing with our number system and we will be solving some of the questions for better clarity. So the first question is to simplify 3 square root 5 into 2 square root 3. So we can use the distributive formula. 3 into 2 is 3 into 2 is 6. 3 into root 3 can be written as 3 root 3. Root 5 into 2 can be written as 2 root 5, and root 5 into root 3 can be written as square root 15. So this will be our final formula, final answer. We cannot solve it further because 3 root 3, 2 root 5 and square root 15 are not like terms. We cannot add them. Next question is, if we are given with the value of square root 3, we have to evaluate this expression. So carefully looking at square root of 27, it can be written as 9 into 3 square root of 9 into 3, and further it can be simplified as square root of 9 into square root of 3. We know that square root of 9 is 3. So 3 and square root of 3 can be written as square root of 3 only. So the final answer is 3 root 3. Now we will see for 3 root 75. 3 root 75 can be written as 25 into 3. So 3 into, it can be broken as 3 into square root of 25 into square root of 3. And we know that 3 into square root of 25 is simply 5 into square root of 3 as it is. So it is 15 square root 3, which I have written here. Now the next one is 5 into square root of 48. So 5 into square root of 48, 5 into square root of 48 can be written as 16 into 3, and further simplifying, square root of 16 into square root of 3. Square root of 16 as we know is 4. So 5 into 4 into square root of 3, which is 20 square root 3. Next is 2 into square root of 108. 2 into square root of 108, which can be simplified as 2 into square root of 108 can be written as 36 into 3. So 2 into square root 36 is simply 6 into 3 root 3 as it is. So it is 12 square root 3. So 12 square root 3. Now as we can see that square root 3, square root 3, square root 3 and square root 3, we can take square root 3 common if we want. So it is 3 minus 15 plus 20 plus 12, which is 20 square root 3. 20 into square root 3, the value of square root 3 we are given in the question itself, which is 1.732, and we can solve and get the answer 34.64 as the final answer. Next question है, that is हमें स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू दे रखी है और हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है. तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे, इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे. तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने सिंपली क्या करेंगे कि 4 इंटू द डिनोमिनेटर ऑफ दिस टर्म यानी दिस प्लस 3 इंटू इस वाली टर्म का डिनोमिनेटर एंड देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू डिनोमिनेटर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास होती 4/5 एंड 5/4, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं. हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है 20 एंड ये वाली जो 4 बनता दैट वुड बी 4 इंटू 4 यानी 4 इंटू दीज टू द डिनोमिनेटर ऑफ अदर फ्रैक्शन प्लस 5 इंटू ये वाला फ्रैक्शन विच इज़ 5 इंटू 5. तो अगर हमारा एडिशन होता बीच में तो ये होता 16 प्लस 25 विच इज़ 16 प्लस 25 अपॉन 20. ऐसे बनती फ्रैक्शन. तो सिमिलरली हमने यहाँ पे भी वही सेंस लगाया. नाउ द नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे विच इज़ 4 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो 12 स्क्वायर रूट 3 आ गया. 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट 2, तो 4 इंटू 2 8 स्क्वायर रूट 2 आ गया. यहाँ पे 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 9 स्क्वायर रूट 3,
3 इंटू टू स्क्वायर रूट टू, 6 स्क्वायर रूट टू, माइनस 6 स्क्वायर रूट टू। तो अब 12 स्क्वायर रूट थ्री एंड 9 स्क्वायर रूट थ्री विल हम उनको ऐड कर लेंगे, तो हो गया 21 स्क्वायर रूट थ्री। 8 स्क्वायर रूट टू और 6 स्क्वायर रूट टू को हम आगे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट टू, एंड डिनोमिनेटर जो है वो हम देख सकते हैं वो क्या बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो दैट विल सिंप्लीफाई टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर का क्या मतलब हो गया कि 3 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट थ्री इंटू स्क्वायर रूट थ्री विच इज़ सिंपली 3, तो आ गया हमारा 27। अगर सिमिलर वे से हम 2 स्क्वायर रूट टू निकालने की कोशिश करें, 2 स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर निकालने की कोशिश करें, तो दैट विल बी 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट टू स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज़ 4 एंड स्क्वायर रूट टू यानी स्क्वायर रूट टू इंटू स्क्वायर रूट टू विच इज़ 2 अगेन, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो 27 माइनस 8 विच इज़ 19, तो हमारा हो गया 21 स्क्वायर रूट थ्री प्लस 2 स्क्वायर रूट टू पहले निकाला था अपॉन 19। नाउ स्क्वायर रूट थ्री की वैल्यू हमें दे रखी है, स्क्वायर रूट टू की वैल्यू हमें दे रखी है, हम उसको सब्सटीट्यूट करेंगे एंड देन अपनी इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रैशनलाइज, हमारे को एक फ्रैक्शन दे रखी है। अब रैशनलाइज करने का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर से हमारे को जो ये स्क्वायर रूट वाला जो रूट वाले टर्म्स है उन्हें हटाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल 7 प्लस थ्री स्क्वायर रूट टू दे रखा है, तो 7 प्लस थ्री स्क्वायर रूट टू ए प्लस बी दे रखा है, अगर हम इसे a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते वक्त हमारा जो स्क्वायर रूट वाला जो टर्म होगा वो गायब हो जाएगा और वो एक नेचुरल नंबर में आ जाएगा। तो हम वही करें, हमारे को यहाँ पे a प्लस बी दे रखा है, हमने a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया। अगर हम a माइनस बी से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a माइनस बी से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने किया a माइनस बी न्यूमरेटर में भी और फिर a माइनस बी डिनोमिनेटर में भी। तो a माइनस बी न्यूमरेटर में तो एज इट इज़ आ गया, डिनोमिनेटर में क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर विच इज़ 49 एंड बी स्क्वायर स्क्वायर रूट थ्री स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर निकालना है विच इज़ 3 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज़ 9 इंटू स्क्वायर रूट टू यानी कि स्क्वायर रूट टू इंटू स्क्वायर रूट टू विच इज़ 2, तो 18, तो यहाँ पे आ गया 18। तो 7 माइनस थ्री रूट टू अपॉन में 31। अगर हम यहाँ पे फाइनल आंसर में देखें तो हमारे को डिनोमिनेटर में कोई भी जो है स्क्वायर रूट वाली टर्म नहीं दिख रही है, तो येस हमने इसको रैशनलाइज कर दिया है। दिस इज़ द फाइनल आंसर। सिमिलरली हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ 5 अपॉन स्क्वायर रूट थ्री माइनस स्क्वायर रूट 5, अगर हम इसको सॉल्व करने जाएँ तो इट इज़ 5 अपॉन स्क्वायर रूट थ्री माइनस स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पे क्या है, a माइनस बी दे रखा है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a प्लस बी से, ताकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सके। अब क्वेश्चन आ सकता है कि a माइनस बी दे रखा है तो आप a माइनस बी से क्यों नहीं कर देते, तो a माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा, तो विच इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ए बी सॉरी, तो वो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। अगर 2ab में से कोई a या b टर्म स्क्वायर रूट वाली निकली, जैसे हमारे यहाँ पे b टर्म स्क्वायर रूट वाली थी, तो यहाँ पे अगेन b टर्म स्क्वायर रूट वाली हो जाएगी, तो हमारा कोई लॉजिक नहीं बनेगा कि हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अगेन हम स्क्वायर रूट वाली टर्म्स में ही लैंड कर जाएंगे। तो इसीलिए अगर a माइनस बी है तो हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए। अगर कोई एक भी टर्म स्क्वायर रूट वाली है तो स्क्वायर की वजह से उसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। ओके, कमिंग बैक टू दिस पार्ट,
तो अब हम क्या कर रहे हैं, a माइनस बी हमें पास ऑलरेडी है, a प्लस बी से हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में तो एज इट इज़ आ गया, डिनोमिनेटर में जब हमने लिखा तो a स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 विच इज़ 3, एंड b स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 विच इज़ 5। तो ये हो गया रूट 3 का स्क्वायर विच इज़ 3 माइनस 5 का स्क्वायर विच इज़ 2, सॉरी विच इज़ 5, तो 3 माइनस 5 हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पे हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 5 अपॉन में माइनस 2। अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम माइनस 2 को ऊपर ले जाएंगे और लिखेंगे माइनस ऑफ 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 5 अपॉन में 2। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे को दे रखा है वो है 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 अपॉन में स्क्वायर रूट 48 प्लस स्क्वायर रूट 18। सबसे पहली बात, स्क्वायर रूट 48 को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर रूट 48 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3, और स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 16 इंटू स्क्वायर रूट 3 विच इज़ 4 स्क्वायर रूट 3, तो हमने इसको 4 स्क्वायर रूट 3 लिख दिया। सिमिलरली रूट 18 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज़ 3 स्क्वायर रूट 2, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब आगे अगर हम इसको सॉल्व करें, अब हमारे को इसको अब हमने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया। अगर हम इसको रैशनलाइज करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है, a प्लस बी ऑलरेडी है, उसी a माइनस बी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो डिवाइड मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लाना पड़ेगा। तो हमने ये लाए अपॉन में, ये डिनोमिनेटर हो गया विच इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना पड़ेगा। a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 16 इंटू 3 विच इज़ 48, एंड नेक्स्ट क्या है 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर विच इज़ 9 इंटू 2 18, तो माइनस का 18 आ गया। न्यूमरेटर में हमारे पास सॉल्व करने के लिए इस बार थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम वही अपने ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे विच इज़ 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 स्क्वायर रूट 3 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इज़ 48, तो पहली टर्म आ गई 48। फिर उसके बाद 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट 2, तो 4 इंटू 3 विच इज़ 12, और स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 6। अगर आपको डाउट है कि ये स्क्वायर रूट 6 कैसे आया, तो हम ये देख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 का क्या मतलब है 3 टू द पावर 1/2 इंटू स्क्वायर रूट 2 का क्या मतलब है 2 टू द पावर 1/2। तो अगर हम इसको अगर आपको जो एक्सपोनेंट्स हैं उसके लॉज याद हो, अगर पावर्स सेम है तो हम बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर ऐसे आ जाती है, तो 6 टू द पावर 1/2 जिसको हम स्क्वायर रूट 6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, हम क्या कर रहे थे 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट 2, तो 4 इंटू 3 12, और स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 विच इज़ 12 विच इज़ 6, तो यहाँ पे हो गया 12 स्क्वायर रूट 6। नेक्स्ट हो गया 4 इंटू 5 विच इज़ 20, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 अगेन वो हो जाएगा 20 स्क्वायर रूट 6। फिर 5 इंटू 3 15 माइनस 15, और स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा 2, तो माइनस 15 इंटू 2 जो कि 30 हो जाएगा। तो 48 माइनस 30 18, और 20 स्क्वायर रूट 6 माइनस 12 स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा 20 माइनस 12, इसको हम ऐसे लिखते हैं स्क्वायर रूट 6 को बाहर कॉमन ले लिया माइनस 12 प्लस 20, तो इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं 8 से, तो स्क्वायर रूट 6 इंटू 8 विच इज़ 8 स्क्वायर रूट 6, तो यहाँ पे ऐसे आ गया। अगर आप चाहो तो अब यहाँ से हम 2 बाहर कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर से, तो यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा 4 स्क्वायर रूट 6, तो नीचे 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 15, तो ये हमारा फाइनल। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 अपॉन स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2। इसको सॉल्व करने के लिए 2-3 तरीके हो सकते हैं, उनमें से हम एक प्रैक्टिस करके देखते हैं विच इज़ आई एम कंबाइनिंग दिस एज ए। तो अगर ये a है और ये b है तो हमारे पास a प्लस बी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया ताकि इसको कैंसिल करें तो 1 आ जाएगा, तो इन शॉर्ट हमने उस फ्रैक्शन को चेंज नहीं कर रहे हैं, ओके।
तो अब हमने क्या किया, न्यूमरेटर में तो सिंपली इट विल बी 2 इंटू स्क्वायर रूट 5, 2 स्क्वायर रूट 5, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 विच इज़ 2 स्क्वायर रूट 3, 2 इंटू -4 विच इज़ 2 इंटू -2 विच इज़ -4. डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, दिस इज ए टर्म, दिस इज बी टर्म, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, तो अब क्या हो गया, न्यूमरेटर तो एज इट इज़, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा ए स्क्वायर है विच इज़ एक्चुअली सम सी प्लस डी का होल स्क्वायर. तो हमने यहाँ पे क्या किया, सी स्क्वायर डी स्क्वायर 2cd और ये -4 तो एज इट इज़ आ गया. अब अगर हम देखें तो दिस इज़ 5, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर इज़ 3, दिस इज़ 2 रूट 15 -4. तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 प्लस 3 8, 8 -4 4 अगेन, और ये 2 स्क्वायर रूट 5 और न्यूमरेटर तो एज इट इज़ चल रहा है. 2 बाहर अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 -2 अपॉन 2 प्लस स्क्वायर रूट 15. क्या हमारा यहाँ पे आंसर एंड हो गया, जैसे हमने पहले के क्वेश्चंस में किया था कि एक बार रैशनलाइज किया और हमारा आंसर एंड हो जाता था. लेकिन द क्वेश्चन इज, क्या हम रैशनलाइज पूरा कर पाए, क्या हमारे डिनोमिनेटर से रूट वाली टर्म चली गई, वो तो अभी तक नहीं गई. तो हमारे को एक और बार रैशनलाइज करना पड़ेगा ताकि वो स्क्वायर रूट वाली टर्म को हम हटा सकें. तो हम अगेन सेम प्रोसीजर अगेन फॉलो करेंगे. अब यहाँ पे क्या है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये ए वाली टर्म है, ये बी वाली टर्म है, बीच में एडिशन है, तो हम ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में हम देखें तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी का स्क्वायर विच इज़ स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर विच इज़ 15. तो 4 माइनस 15 हो गया माइनस का 11. तो डिनोमिनेटर अब हमारा सॉर्ट हो चुका है क्योंकि अब उसमें से हमारी स्क्वायर रूट वाली टर्म चली गई है. अब हम न्यूमरेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. स्क्वायर रूट 5 इंटू 2 इज़ 2 स्क्वायर रूट 5, देन स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 इज़ 2 स्क्वायर रूट 3, 2 इंटू -2 इज़ -4. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 15 सिंपली स्क्वायर रूट 75, फिर स्क्वायर रूट 3 इंटू ये माइनस स्क्वायर रूट 45 एंड 2 इंटू ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 15. अब ध्यान से देखें, 2 स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़, 2 स्क्वायर रूट 3 -4, 75 स्क्वायर रूट 75 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 25 इंटू 3 विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, जिसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू स्क्वायर रूट 3. तो ये यहाँ पे ये हो गया. अब स्क्वायर रूट 45 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 5. तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 3 स्क्वायर रूट 5 आ गया जो यहाँ पे लिखा है. देन 3 स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़, और यहाँ पे जो है माइनस स्क्वायर रूट जो प्लस स्क्वायर रूट 15 है वो यहाँ आ गया उसको, क्योंकि हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. 2 स्क्वायर रूट 5 वाली टर्म ये भी है, तो 2 माइनस 3 विल बी -1 स्क्वायर रूट 5. स्क्वायर रूट 3 वाली टर्म अगर हम देखें तो एक ये है और एक ये है, तो 2 माइनस 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 है ये, तो विच इज़ -3 स्क्वायर रूट 3, तो वो यहाँ पे आ गया. फिर -4 एज इट इज़, और ये 50 स्क्वायर रूट 15 के साथ कोई लाइक टर्म नहीं है तो वो भी एज इट इज़ कॉपी हो गया. और ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में कोई भी आपको डिनोमिनेटर में हमारे को कोई भी जो है स्क्वायर रूट वाली टर्म नहीं दिख रही है, तो इसलिए ये हमने रैशनलाइज कर लिया है. अगर आप इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो हम माइनस को ऊपर ले जाएंगे और हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 -4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 अपॉन में 11, और माइनस अगर अंदर जाएगा तो स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 15 अपॉन में 11 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे विल बी अब हमारे को क्या दे रखा है, a एंड b आर द रैशनल नंबर्स, और आपको a ये इक्वेशन दे रखी है जहाँ पे a एंड b यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमें देख सकते हैं, और हमें निकालना है a एंड b की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि इसको अगर आप इन दोनों को देखो ध्यान से
तो अगर कंपेयर करना है तो सबसे पहले जो हमारा फोकस जाएगा, हम देखेंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ हमारे को कुछ स्क्वायर रूट वाली टर्म्स दिख रही हैं। तो हम सबसे पहला स्टेप करते हैं कि चलो स्टार्ट करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करना स्टार्ट करते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आया और हमारा दिमाग उस टाइम पे नहीं चल रहा, तो सबसे पहला स्टेप हम करेंगे कि रैशनलाइज करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिंप्लीफाई होगी तो मे बी हमारे को हमारे आंसर्स मिलने लग जाएं। तो रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर में a प्लस बी वाली टर्म ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे a माइनस बी से मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई भी किया और a माइनस बी से हमने डिवाइड भी कर दिया। तो अब मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 4 स्क्वायर रूट 3, तो 5 इंटू 4 हो गया 20 स्क्वायर रूट 3, फिर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 क्या हो जाएगा 14 स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे हो गया 2 इंटू 4 स्क्वायर रूट 3 विच इज़, देखो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, और स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 क्या हो गया 3, तो 2 माइनस 8 इंटू 3 विच इज़ 24। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया। अब 4 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर अगर हम सोचें विच इज़ 4 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 इंटू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, तो विच इज़ 16 इंटू 3 यानी 48 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 35 हमने अभी देखा था, माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 प्लस 14 स्क्वायर रूट 3 माइनस 24। अब यहाँ पे क्या, अगर हम स्क्वायर रूट 3 को बाहर कॉमन ले लें तो माइनस 20 प्लस 14 विच इज स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 6, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 6, और 35 इंटू 35 माइनस 24 क्या हो गया 11, सॉरी यहाँ पे 6 भी होगा। तो नाउ इट विल बी 11 माइनस 6 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 49 माइनस 1 क्या होता है 1, तो हमारा आंसर क्या हो गया 11 माइनस 6 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू a माइनस बी स्क्वायर रूट 3। तो सिर्फ हम अब हम कंपेयर कर पा रहे हैं और हम क्या कह पा रहे हैं कि 11 जो a जो है दैट इज इक्वल टू 11 और b इज इक्वल टू 6, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। Thank you so much. If you liked the video, please like, share and subscribe to the channel for next upcoming videos of the same topic.